What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 2nd of June and today was Nifty's weekly expiry. And the month it again started with a brutal, treacherous and particularly tough weekly expiry, especially for the option writers. The markets opened with a gap down. 23,200 के आसपास markets open हुआ and 23,200 as we have been discussing multiple times is an excellent support and markets वहाँ से ऊपर move होना शुरू कर दिया and within the first 45 minutes the markets made a high of 23,375. मतलब ओपन से लेके 375 तक ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का एक मूव ऑलमोस्ट आ गया था विथ द स्ट्रैडल ओपन ऑफ जस्ट 120 एंड फ्रॉम देयर द मार्केट्स गॉट सोल्ड इनटू एंड सेकंड टाइम द मार्केट्स अगेन ट्राई टू टेक द डेज हाई बट अगेन दे गॉट सोल्ड इनटू एंड विद इन द फर्स्ट 2 hours of market action the markets had already given a total swing of 400 plus points and at this point we again receive a news from Iran saying that Iran is contemplating on permanently closing the Strait of Hormuz and they are completely scrapping off the negotiations with the US. And this was supposed to be a negative news and probably a lot of people would have built short positions, but at exactly 12:30 the market started to move higher and within 2 to 3 minutes the day's high got taken out and that exploded the call option by multiple times. Just to give you context, 2 रुपये का कॉल ऑप्शन 120 का हाई किया इन अ लेस देन 30 to 40 मिनट्स एंड 1.4 1.5 रुपये के आसपास जो कॉल ट्रेड कर रहा था इट मेड अ हाई ऑफ 80 एंड फाइनली इट एक्सपायर्ड वर्थलेस. So the markets made a high of 23,550 levels where 23,600 options were also trading at a significant skew and later all those options went worthless. And post 2 o'clock the markets it again reversed by almost 120 points while the straddle was pricing in a mere 60 point move. Call option 30 rupees पे trade कर रहा था, put option 30 rupees पे trade कर रहा था, but the markets fell almost 120 points in less than 15 to 20 minutes, spiking the put options by again 10 to 12 times. जो ऑप्शन 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा था इट मेड अ हाई ऑफ 40 एंड फाइनली इट एंडेड वर्थलेस. सो द ऑप्शंस ब्लास्टेड मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे एंड एवरी 15 मिनट्स द ऑप्शंस वर ट्रिपलिंग एंड हाविंग which made the life of the option traders extremely difficult today. But positionally speaking, right now offers a really good risk reward to go long on Nifty. बिकॉज मार्केट्स गैप डाउन ओपन हुआ एंड ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज दे रहा है एंड इट हैज टेकन अ डिसेंट सपोर्ट फ्रॉम 23,200 लेवल्स एंड वी हैव ऑल्सो सीन अ 7% क्रश इन इंडिया विक्स एंड इन स्पाइट ऑफ द नेगेटिव न्यूज द मार्केट्स एक्चुअली वेंट हायर. सो probably the markets might start to move higher and अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो एक 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं. यस, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो जाता है बट द रिस्क रिवॉर्ड टू गो लॉन्ग ऑन निफ्टी एट दिस पॉइंट इज रियली गुड इन माई ओपिनियन. सो टुमारो इज अगेन सेंसेक्स 1DT एंड सेंसेक्स का प्रीमियम्स नॉट दैट अट्रैक्टिव, अगेन 700 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है एंड द मार्केट्स हैव क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट द डेज हाई. सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स प्लान फॉर टुमारो. So this is what I've been talking about. So यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट्स ने लिया है. यू कैन नोटिस दैट गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी मार्केट्स ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है एंड दिस इज़ अ मारुबोजू कैंडल एमिनेटिंग एट एग्जैक्टली द सपोर्ट लेवल. ठीक है, सो whether the market's gonna go up or not it is immaterial, but from a swing trading point of view this is an excellent candlestick pattern and this is an excellent pattern to trade. तो आपको 300 पॉइंट के रिस्क के साथ हमको एक पोटेंशियली 600 to 800 पॉइंट का एक रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है एंड यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स यहाँ पे आ रहा है. वन इज ड्यूरिंग द मार्केट्स वी गॉट अ नेगेटिव न्यूज़ बट इन स्पाइट ऑफ दैट द मार्केट डाइजेस्टेड दैट एंड इट हेडेड हायर. एंड दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया विक्स वापस 15.5 के आसपास आ चुका है. तो लास्ट टाइम इंडिया विक्स 15.5 के आसपास आया था दैट वाज हियर समवेयर अराउंड 24,000 लेवल्स. सो वापस मार्केट्स लोअर वोलेटिलिटी को प्राइस इन कर रहा है. ऑफ कोर्स टुडे द मार्केट्स वर क्वाइट वाइल्ड एंड स्पेशली एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शंस का जो गामा का बिहेवियर है वो काफ़ी ब्रूटल था बट नॉनदलेस पोजिशनली स्पीकिंग दिस इज़ अ गुड पॉइंट इन माई ओपिनियन टू एक्चुअली गो लॉन्ग. तो यहाँ पे हम लोग कॉल रेशियोज होने दो या इवन पुट स्प्रेड्स होने दो, लाइक पोजिशनली हम लोग बना के जा सकते हैं एंड इवन कॉल डेबिट स्प्रेड्स भी हम लोग बना के जा सकते हैं विच ऑफर्स एन एक्सेलेंट रिस्क रिवॉर्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स इज ट्रेडिंग एट 15.3, प्रॉब्ली लोअर देन वॉट इट वॉज प्रिंटिंग एट दिस पॉइंट. ठीक है, सो all the other markets are particularly strong, but Indian markets are nowhere as strong as the global markets. But nonetheless, this is a good sign. At least markets यहाँ पे supports को resist कर रहे हैं and we are not in some sort of a free fall. यहाँ पे stop loss जाएगा तो जाएगा.
आई एम नॉट सेइंग दैट मार्केट्स यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है, प्रोबेबिलिटी है, वो हमारे फेवर में आता है। तो 1:1 जैसे हमको मिल जाएगा, अनदर 300 पॉइंट्स भी हमको थोड़ा सा जो क्या अपमूव मिल जाएगा, देन वी कैन एक्चुअली ट्रेल आवर स्टॉप लॉसेस कॉस्ट टू कॉस्ट। तो वहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री बन जाएगा। सो टू टॉक अबाउट टुडेज एक्सपायरी, अगेन वन ऑफ द ब्रूटल एक्सपायरी, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा, मेरे लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा, बिकॉज यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद येस एवरीवन एक्सपेक्टेड दैट यहाँ पे कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आना चाहिए, एंड वहाँ पे आया मार्केट्स, एंड उसके बाद एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, एंड देन अनदर शार्प अप मूव, एंड देन अनदर शार्प डाउन मूव। बट यहाँ पे मार्केट्स 12:30 के आसपास काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, एंड एवरीवन एक्सपेक्टेड दैट 480 के आसपास मार्केट्स को हॉल्ट करना चाहिए, एंड दिस एक्स्ट्रा जो अपमूव आया, दिस एक्चुअली काइंड ऑफ शुक आउट ऑल द कॉल राइटर्स। जनरली क्या होता है कि लाइक मार्केट्स इतना ज़्यादा अपमूव देने के बाद जनरली यहाँ पे थोड़ा ब्रीदर लेना चाहिए, बट अगेन व्हेन एवरीबडी थिंक्स दैट मार्केट्स यहाँ पे ब्रीदर लेना चाहिए, देन अ लॉट ऑफ इम्पल्सिव कॉल राइटर्स वुड हैव कम हियर एंड प्रॉब्ली शॉर्टेड एट द मनी 23,500 एंड 23,550 कॉल्स, एंड लेटर यहाँ पे जो अपमूव आया, यहाँ पे इवन दोज 23,500 कॉल्स मेड अ हाई ऑफ 75 rupees. So quite brutal expiry, and even during this fall all the put options blasted 10 to 15 times, and यहाँ पे again जो call option था 6 रुपए पे था, and that 6 रुपए का call option again ended at somewhere around 35 rupees. So multiple times options 4 to 5 times जा रहा है, and this is happening at least once in a month. सो अगर एक महीने में अगर हम लोग थोड़ा भी गलती से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस ले लेते हैं, जैसे मैंने आज लिया, एक अग्रेसिव अकाउंट में ट्रेड करता हूँ जहाँ पे मेरा आज 2% का लॉस हिट हो गया। ऑफ कोर्स जब बनता है तो वहाँ पे 1.5% वहाँ पे बन जाता है, बट जैसे यहाँ पे 2% का ऐसे लॉस हिट हो जाता है ना, तो देन that kind of completely takes away your entire month, because फर्स्ट दिन महीने का फर्स्ट डे ही अगर 2% का अगर लॉस हिट हो जाता है, तो then you'll be on a back foot, you'll be playing defensive, so the entire month you'll just be like waiting to just close in green. So that is mostly a psychological issue, not exactly the market's issue, but again taking a 2% loss, especially like I was just at 1% loss and I was expecting the markets to close somewhere around 23,500 levels, but यहाँ पे मैं peak पे puts close करना पड़ा, I got wicked out here, then again I got wicked out here, so multiple times वहाँ पे like जो losses तो था वो काफ़ी ज़्यादा pile up हो गया। No worries, because this account, that account was meant to go aggressive, and जो जहाँ पे मैं defensive trade करता हूँ वहाँ पे सिर्फ मेरा 0.2 to 0.3% के बीच ही मेरा loss गया है, so which is not a big thing at all। but यहाँ पे जैसे एक बड़ा लॉस हो जाता है, जनरली मैं छोटा कैपिटल से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग 50 लाख 1 करोड़ से ट्रेड करते हैं, जो अगर वो लोग 2 to 2.5% अगर किसी भी एक दिन अगर लॉस ले लेते हैं, स्पेशली इन द करंट मार्केट्स, देन इट्स गोना गेट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्चुअली साइकोलॉजिकली मैनेज योर सेल्फ। एंड ऑल्सो जीरो DT इन माई ओपिनियन इज गोइंग टू बी डेड प्रेटी सून, स्पेशली जो टीटा डीके के लिए जो ट्रेड करते हैं एंड टाइम बेस्ड स्ट्रैडल जैसे वाले ट्रेड्स करते हैं, जो एल्गोस चलाते हैं, उनके लिए आई feel that there is going to be a lot of painful days ahead, because coming from August, this averaging period is going to go away, and we are going to move into CAS, बेसिकली क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे लाइक जो 3 to 3:30 के बीच में थोड़ा बहुत हमको जो पैसे मिलता था बिकॉज ऑफ एवरेजिंग, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गो अवे, एंड ऑल्सो जो एक्सपायरी के बीच में जो प्रीमियम्स जैसे बिहेव कर रहा है, पहले कैसे होता था कि लेट्स से द मार्केट्स मतलब कॉल ऑप्शन 3 to 4 टाइम्स अगर जंप भी होता है एंड अगर वो वापस ऐसे आ जाता है ना, तो 100% वो सर्टेनिटी होता था कि लाइक ये ऑप्शन धीरे धीरे करके वो नीचे ही जाएगा। बट आजकल इफ आई कैन जस्ट गो बैक एंड चेक दिस, सी 23,400 का कॉल ऑप्शन अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, यू कैन नोटिस हियर कि मल्टीपल टाइम्स यू कैन नोटिस दैट, आई एम सॉरी, you can notice that यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्पाइक दिख गया था। यहाँ पे यू कैन नोटिस दैट 13 रुपीज से ऑलमोस्ट 27 तक यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% स्पाइक है, एंड उसके बाद वापस 10 रुपीज आया, 10 से वापस 45 गया, 4 टाइम्स स्पाइक है, उसके बाद वापस 10 पे आया, एंड दैट इट अगेन 35 रुपीज तक गया, 3.5 टाइम्स। इतना होने के बावजूद फिर से इट एंडेड अप मेकिंग अ हाई ऑफ
ऑलमोस्ट 170 रुपीज। सो पहले कैसे होता था कि अगर एक बार ऑप्शन 4 टाइम्स 5 टाइम्स या इवन 6 टाइम्स भी अगर स्पाइक मारता है एंड वो वापस आ जाता है तो जनरली ऐसे करके बीच में थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा यहाँ पे एक अपसाइड एंड डाउनसाइड रहता था, बट फाइनली कहीं ना कहीं ऑप्शन जीरो जाता था। तो एक बार हम लोग एक तरह से बच गए तो जनरली वो ऑप्शन यूजुअली जीरो होता था, बट अभी ऐसा नहीं है। यू कैन नोटिस दैट हाँ, इवन इफ समबडी शॉर्टेड इट एट ऑलमोस्ट द पीक एंड इफ दे एक्सपेक्ट दैट ओ 40 रुपये का ऑप्शन 10 रुपये आ गया है कि वो जीरो होने वाला है, नो, विद इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स वो ऑप्शन आपका स्टॉप लॉस भी खाएगा एंड 40 रुपीज से बहुत ऊपर भी जा सकता है एंड उसके बाद एंड में वो जीरो भी जा सकता है। सो 23,500 अगर कॉल ऑप्शंस की बात करें, 23,500 कॉल ऑप्शंस की अगर बात करें, कैन नोटिस दैट इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिला, सेकंड टाइम फिर से स्पाइक देखने को मिला एंड थर्ड टाइम व्हेन द ऑप्शन वाज एट 1.3 रुपीज, मतलब सब लोग सोचे होंगे कि ये जीरो जाने वाला है, बट दैट 1.3 रुपीज एंडेड अप मेकिंग अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 80 एंड लेटर इट बिकेम जीरो। सो इवन ड्यूरिंग this choppy period also the premiums were multiplying मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द लो ऑफ 30 to 34 के बीच में यहाँ पे लो है एंड 70 के आसपास यहाँ पे हाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 30 से लेके 70 तक मल्टीपल टाइम्स मार्केट्स ट्रैवल करके आता है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट बोथ फॉर द ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स। अगर कोई ऑप्शन बायर यहाँ पे अगर बाई करता तो उसको यहाँ पे होल्ड करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इवन ऑप्शन सेलर को, लेट्स से ऑप्शन सेलर को कलेक्ट करने के लिए कितना रहता है, x रुपीज रहता है, विच इज द प्रीमियम। बट अगर वो प्रीमियम 2x पे होता है, 2x चला जाता है, तो इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्शन राइटर टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू दैट, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड आपके अगेंस्ट बैठना चालू कर देता है। सो इवन इफ समबडी हैज टू स्क्वायर इट ऑफ एट ट्वाइस द प्रीमियम, तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हम लोग चॉप होने वाला है एंड दिस इज द काइंड ऑफ सिनेरियो विच इज गोइंग टू अकर मोर फ्रीक्वेंटली गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑप्शन सेलिंग स्पेशली विथ ELM rule and lower expiries and increased STT and now the CAS system. Now the CAS system, it is going to make it extremely challenging, extremely difficult. Like people are going to find the drawdowns much higher than their backtested results, and even the discretionary traders like me, we are also going to face some painful months, painful quarters, or probably even painful years going forward. This is what I truly feel. ठीक है, so all this aside, so tomorrow is again Sensex 1DT एंड सेंसेक्स का जो स्ट्रैडल था, यस, जस्ट लाइक निफ्टी, यहाँ पे भी सेंसेक्स में भी जब ब्रेकआउट हुआ तो देयर वाज अ रीप्राइसिंग इन द स्ट्रैडल 770 से लेके ऑलमोस्ट 827 तक 50 पॉइंट्स का एक स्ट्रैडल में स्पाइक देखने को मिला। बट जब निफ्टी का 70 रुपीज के ऑप्शन पे 25 पॉइंट्स का एक स्पाइक देखा तो उसके कंपैरिजन में 750 रुपीज के ऑप्शन पे 50 पॉइंट्स का जो स्पाइक, इट इज प्रैक्टिकली नथिंग। बट ऑफ कोर्स देयर वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डेल्टा मूव, तो कहीं ना कहीं 700 के आसपास स्ट्रैडल क्लोज दिया है। सो प्रोबेबली टुमारो 650 के आसपास ओपन होने वाला है एंड प्रोबेबली समवेयर अराउंड 550 के आसपास क्लोज देने वाला है। सो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ 100 पॉइंट क्रश। सो 100 पॉइंट क्रश के साथ क्या हम डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन एक्सपायरी डे के दिन ही डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करना इतना मुश्किल हो चुका है, सो नॉन एक्सपायरी डेज के दिन डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड बिल्कुल कोई ट्राई नहीं करना चाहिए। यस, एक आध दिन आपको ऐसे लीनियर डी के मिलने वाला है एंड मार्केट्स बहुत ही छोटा रेंज में रहने वाला है, बट देन इट विल बी फॉलोड बाय 2 or 3 ब्रूटल डेज वेयर यहाँ पे जितना आपने पैसे बनाया उसका 3 गुना 4 गुना आप इन 2-3 दिनों में वापस आप दे देते हो, विच अगेन मेक्स योर मंथ नेगेटिव एंड यू नॉट गोना मेक मनी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सो टुमारो प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेड्स लेना है तो देन अगेन वी बी इट्स रियली गुड इफ द मार्केट ओपन समवेयर अराउंड 74,600 लेवल एंड 74,500 के आसपास मार्केट्स यहाँ पे एक छोटा टाइम फ्रेम पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पैटर्न बनाएगा, तो देन हम यहीं पे लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए वेट करने का जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं एंड यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करेगा और यहाँ पे रिवर्ट करके वापस यहाँ पे आ जाएगा तो देन विल टेक ईदर स्टॉप लॉस और विल एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट। बट यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले अगर हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, डेफिनेटली वी शुड टेक दिस टू एक्चुअली बिल्ड द लॉन्ग पोजीशंस। नाउ दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे विद इन फर्स्ट 45 मिनट्स अगर ब्रेकआउट दे देता है, देन वी शुड डेफिनेटली गो इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट्स ब्रेकआउट एंड हमारा जो टारगेट रहेगा समवेयर अराउंड दिस लेवल 75,400 लेवल तक भी मार्केट आ सकता है।
बट अगेन वो जो 75,400 का लेवल जो है वो चाहे हो सकता है कि वो कल आएगा या एक सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन आ सकता है। सो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो वी शुड डेफिनेटली ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। नाउ सिचुएशन डाइसी तब हो जाता है कि जब मार्केट इस स्विंग के नीचे अगर ओपन हो जाता है, दैट इज 74,300 74,200 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो देन अगेन मार्केट्स के पास एक वाइड रेंज खुल जाता है टू एक्चुअली प्ले आउट सम सॉर्ट ऑफ अ वोलेटाइल मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ डे। सो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे अगर ओपन होता है तो देन विल वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू दिस लेवल, यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड लेंगे एंड अगर मार्केट यहाँ पे आएगा यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे मीन रिवर्शन ट्रेड लेंगे। तो मीन रिवर्शन ट्रेड यहाँ पे कब नहीं लेना चाहिए, इफ द मार्केट ओपन्स बिटवीन दिस स्विंग एंड टुडेज हाई। यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे बाउंस लेता है एंड अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो देन यहाँ पे मीन रिवर्शन ट्रेड मत लो। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ही आके वापस यहाँ से मीन रिवर्ट करे, बट हमको यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट्स को ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ठीक है, सो अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेट्स से 75,000 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो देन ओपन करते ही हमको बाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी गैप अप के तौर से मार्केट ऑलरेडी एक टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुका रहता है, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ सेल ऑफ, तो प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इन एनी केस अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, दैट इज 74,950 लेवल के आसपास, दैट इज 75,000 एक राउंड नंबर लेवल भी आ जाता है एंड कंसिडरिंग दैट डे आफ्टर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी है तो 75,000 के पुट राइटिंग भी थोड़ा बहुत हावी रहता है। सो 74,950 75,000 के आसपास अगर मार्केट फिर से यहाँ से सेल ऑफ होके प्रॉफिट बुकिंग देख के वापस यहाँ पे आ जाता है, देन वी कैन अगेन प्लान सम सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्रेड्स हियर। तो अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स से लाइक आज का जो गैप नेगेटिव न्यूज़ है एंड उस नेगेटिव न्यूज़ को यूज़ करके प्रोबेबली इफ वी एक्सपेक्ट दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ गेमिफिकेशन, जहाँ पे लेकिन नेगेटिव न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट पोजीशंस लिए होंगे एंड उनका सारा स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट्स अगर ऐसे ऊपर गया हो एंड आज के रात अगर थोड़ा और नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है एंड अगर मार्केट उसके लिए ट्रू रिएक्शन अगर देता है एंड मार्केट्स यहाँ पे अगर खुलता है, दैट इज इस जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टच पॉइंट्स है, राइट, इसके नीचे अगर खुलता है तो देन एक्सपेक्ट दिस लो टू बी टेकन आउट विद इन द फर्स्ट 45 मिनट्स। अगर ये सिनेरियो हो जाता है तो देन इट्स गोना बी अ रियली ट्रिकी सिनेरियो इन द कमिंग डेज ऑल्सो, बिकॉज जिस प्रकार से मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाया है तो ये जो लो है ये लो ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये लो ब्रीच हो रहा है इसका मतलब ये है मार्केट्स में कुछ नया इन्फॉर्मेशन आया है एंड द मार्केट इज ट्राइंग टू डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का आपका ओवरऑल एक्सपायरी कैसा रहा। फॉर मी नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द मंथ एंड मे बी मेरा ऑलमोस्ट जस्ट 0.7-0.6% उतना ही मैंने ग्रीन पे क्लोज किया था। सो tough couple of months for me, but yeah, I can remember that 2024 maybe I think I had a flat first quarter, 2025 maybe I think I had a flat first quarter, and looking at how the 2026 is going, it's not going to be flat first quarter but definitely not a really great first quarter, but this is what we have signed up for and yeah, I'll see you guys again after tomorrow's market action. Till then, take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.